Hello dear students, I welcome you all to the Career Primes online platform. So today I am here again with the Readers Prime series, another session. Now again with this one we'll start with the summary, the scanning of the newspaper, Indian Express newspaper, and then we'll move to discussing one single article, right? And we'll be talking about all grammatical uses and vocab and everything on that basis. So let's begin without wasting any time, like it's already 5 minutes late. So let's start with scanning the newspaper first. Yes, so this is the newspaper, today's newspaper, right, Indian Express. So first few pages are the advertisements. So you just jump immediately to the page which is of use. So now the very first news what we see in our newspaper, that is Central Vista gets Supreme Court's all clear. 2-1 verdict, say no infirmity, right? So the very first news of the first page, that's what you read. So Central Vista gets, again see, at the moment you see this headline, अगर हमें Central Vista के बारे में पता है पहले से background वगैरह, what is this Central Vista development plan, then obviously it will make sense to you immediately, and what is the controversy around this and why someone moved to the court, right? So what is the controversy, what they are opposing, and so many things. अगर हमें थोड़ा सा भी इसका background पता है तो Central Vista redevelopment plan, you know that what is that? This is the new parliament being constructed, right? न्यू पार्लियामेंट विद दी मिनिस्ट्रियल आवास और ये सब चीज़ों के साथ पूरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है. उसके डेवलपमेंट प्लान है विच द पिक्चर यू सी हियर इन दी हियर इन बिटवीन. सो दिस डेवलपमेंट, दिस इज रिगार्डिंग दिस द कंप्लीट द डेवलपमेंट प्लान, राइट, नियर दी ओल्ड पार्लियामेंट. द ओल्ड पार्लियामेंट विल रिमेन देयर, वो तो रहेगा ही, साथ में न्यू पार्लियामेंट, नई संसद बनाए जाने के लिए एक डेवलपमेंट प्लान है जो कि गवर्नमेंट ने लाया हुआ है. और काफ़ी रिकमेंडेशंस और बहुत सारी चीज़ों के बाद काफ़ी दिनों से कंसीडर किया जा रहा था कि जो ओल्ड पार्लियामेंट है दैट हैज़ बिकम ओल्ड एनफ नाउ, सो देयर हैज़ टू बी सम न्यू पार्लियामेंट, द कंस्ट्रक्शन मस्ट स्टार्ट, क्योंकि अब बहुत सारा वियर टियर हो गया है, काफ़ी पुरानी भी हो गई है बिल्डिंग. इस तरह की रिकमेंडेशंस काफ़ी थी, पहले से डिस्कशंस भी था. तो उस पर एक प्लान है पूरा जो गवर्नमेंट ने लाया हुआ, और उसका कुछ ऑपोजिशन है बेस्ड ऑन दी एनीवे, उसकी उपयोगिता पे आधारित जो अपोजिशन है कि अभी इस समय पैंडेमिक के टाइम पे कितनी उसकी उपयोगिता है, कितनी यूजफुलनेस है उसकी, व्हाट प्रायोरिटी, मीन शुड इट बी प्रायोरिटाइज्ड और नॉट, क्या इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए या दूसरी चीज़ों पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस बात पे कुछ लोगों का अपोजिशन है. और दूसरा कि भाई इसमें इतना ज़्यादा फंड एंड ऑल बीइंग यूटिलाइज्ड, इज दिस मोर इम्पॉर्टेंट नाउ अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग अदर इशूज एंड ऑल. और कुछ लोगों का इशू, कुछ लोगों के ऑपोजिशन इस पॉइंट पे भी है on the basis of the environmental issues, right? Environmental degradation and environmental, the clearances and all. So ये 2-3 चीज़ों पे issues हैं. तो उस केस में they move to the court. So Supreme Court का decision आया है, the verdict आया है, और उसी पे ये news है. So majority ruling clears decks for new parliament. So majority, minority, पता ही है हमें. We live in parliament and we are pretty much familiar. We live in, a democracy, so we are pretty much familiar with majority, minority. What is majority, minority? On the similar basis, Supreme Court में भी decision इसी तरह से होते हैं, जैसे देख रहे हो ना, 2-1 verdict. 2-1 का मतलब ही हुआ 2 versus 1. So एक तरफ 2 justices, the other dissenting judgment जो था, जो सहमति नहीं थी, उधर 1 justice was there. तो इस तरह से ये majority ruling है. Majority मतलब बहुमत से लिया गया जो रूलिंग है, वर्डिक्ट है, डिसीजन है, निर्णय है, सर्वसम्मत से नहीं है. सर्वसम्मत मतलब अगर 3-0 होता तो वो सर्वसम्मत हम कहते हैं. डिसेंटिंग वर्डिक्ट है ऑलरेडी, अगर मान लो विसम्मत वाला है, एक असहमति वाला डिसीजन भी है, तो इस तरह से क्या हो गया, मेजॉरिटी रूलिंग 2:1 से. मेजॉरिटी रूलिंग क्लियर्स डेक. क्लियर्स डेक्स का मतलब हम सबको पता है, हिंड्रेंसेस हटाना, राइट? क्लियर्स डेक्स for the new parliament, so new construction of the new parliament. So the moment you see this heading, if you're familiar with the background, that what is this dispute all about, it will make sense to you. That Central Vista gets Supreme Court's all clear means Supreme Court clarifies it that you should go ahead with the plan, and 2-1 verdict says no infirmity. Infirmity means weakness and all, right? So there's no weakness, there's nothing to be criticized about, there's no weakness in this, so they can go ahead. But the verdict, the decision, the judgment has come with 2:1, right? This is what the heading means.
मतलब हमें किसी भी न्यूज़ को समझने में उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जैसा कि मैं पहले ही कल वाली बात में बता चुका था कि बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स, बहुत सारी न्यूज़ इशूज़ या न्यूज़ ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक, महीनों तक चलते रहते हैं। दे जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन फॉर मंथ्स, राइट? तो इफ़ यू कीपिंग ट्रैक ऑफ इट, if you familiarize yourself in the beginning कि शुरुआत में ही कि इशू है क्या, क्या चल क्या रहा है, तो बाद में जितनी भी न्यूज़ आती रहती है उसी पे एक तरह से एक्यूमुलेशन हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली यू कीप ट्रैक ऑफ इट एंड पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत देखो सब हेडिंग्स में भी ये बात कह दी गई है। प्ली वांटेड अस टू गेट इनटू टेरिटरी बियॉन्ड आवर पावर, बेंच। तो कहा गया है कि प्ली जो पिटिशन पड़ी हुई थी उसमें दैट प्ली वांटेड अस, वो जो जस्टिसेस एक्चुअली मेड अ रिमार्क, उन्होंने एक रिमार्क बोला कि भाई प्ली में ऐसा हमसे उम्मीद की जा रही थी, दे वांटेड अस टू गेट इनटू द टेरिटरी बियॉन्ड आवर पावर, हमारे पावर की, हमारी शक्ति की, हमारी पहुंच के बाहर की टेरिटरी में इंटरफेयर करने की उम्मीद की जा रही थी हमसे, ऐसा बेंच ने बोला, राइट? कि वो हमारे पावर में बहुत सारी रिव्यू की बातें हैं ऐसी जो कि लेजिस्लेचर के मुद्दे में आती हैं, एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आती हैं, वो हमारा काम नहीं है, ऐसी टेरिटरी में हमसे उम्मीद की जा रही थी दैट वी वेंचर इनटू इट। So obviously will not do that. So Justice Khanna dissent, जैसा कि अभी हमने बताया एक डिसेंटिंग जजमेंट भी है, तो मिस्टर जस्टिस खन्ना एक्चुअली गेव द डिसेंटिंग जजमेंट, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं ऑब्वियसली विसम्मति वाला जजमेंट, तो सहमति वाला नहीं है, विसम्मति वाला है। सो जस्टिस खन्ना डिसेंट मस्ट मेक इंटेलिजिबल इंफॉर्मेशन पब्लिक, राइट? सो अपने डिसेंट में जस्टिस खन्ना ने ये बोला है कि जो भी इंटेलिजिबल इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, दैट मस्ट बी मेड पब्लिक, वो जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि हो क्या रहा है। All those information, intelligible information must be made public, which will go to the public. Public must be aware so that the questions will not arise. That's what it is. This is what the dissenting judgment says. So immediately this complete news makes sense to you. पूरा न्यूज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है if you are keeping track of it. इतने से ही हमें बात समझ में आ गई कि वर्डिक्ट क्या है, जजमेंट क्या है, कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने गो अहेड दे दिया है, परमिशन दे दी है, बोल दिया ऑल क्लियर। तो ये सब बातें हमें समझ में आ रही हैं। 2-1 वर्डिक्ट सेज नो इन्फॉर्मिटी, ऐसा बोला है कि इसमें कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सो यू कैन गो अहेड, बट ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड पब्लिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ये 2-3 बातें बोली गई हैं रिमार्क में, लेकिन ओवरऑल इसके पूरे रिव्यू में ऐसा कोर्ट जाने से मना कर दिया, जैसा कि इससे भी समझ में आ रहा है हमें। सो दिस इज हाउ इट इज, राइट? इट मेड सेंस। नेक्स्ट, रेडी फॉर वैक्सीनेशन विद इन 10 days ऑफ अप्रूवल, मिनिस्ट्री। Now here, so ready for vaccination, जैसा कि वैक्सीन्स के बारे में काफी दिनों से बात हो रही है and we pretty much familiar। अब हम अगर familiar हैं तो इसके बारे में देख रहे हो, मिनिस्ट्री के बारे को कोट किया जा रहा है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि रेडी फॉर वैक्सीनेशन विद इन 10 days ऑफ अप्रूवल, कि अप्रूवल मिलते ही 10 दिन के अंदर वी आर रेडी विद ऑल द लॉजिस्टिक्स, सारी लॉजिस्टिक्स के साथ, सारे प्रिपरेशन के साथ हम तैयार हैं 10 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन के लिए, ऐसा मिनिस्ट्री ने अश्योर करा है, राइट? ऑन कोवैक्सीन ऑफिशियल से phase 2 डेटा एनफ in a pandemic as per rules. So कोवैक्सीन के phase 3 डेटा के आउट ना होने के बारे में ऐसा बोला गया है कि भाई phase 2 डेटा जो है वो इनफ है इन अ पैंडेमिक एज पर रूल्स। ऐसी महामारी के दरमियान रूल्स के अकॉर्डिंग phase 2 डेटा इनफ है, और कुल मिलाकर phase 3 की डेटा पे काफी कंट्रोवर्सी है, कल वाले न्यूज में हमने देखा था, तो उसके बारे में एश्योर किया गया है। इतने में इट मेड सेंस, राइट? वी नीड नथिंग एल्स। इसी तरह से अब तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज यू जस्ट कीप गोइंग अहेड with the heading and some heading, with headline and some headlines, sub headlines, that's all, and it will keep making sense to everybody, right? इसी तरह से हमें स्कैन करना है, फर्स्ट पेज में स्कैन करना जरूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज से रिलेटेड न्यूज होती है, और उसमें 2-3 न्यूज जरूर हमारे काम की होती है, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात चल रही है पूरे नेशन में, ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं उनसे रिलेटेड न्यूज होती है पहले पेज पे, इसलिए हम पहले पेज को छोड़ नहीं सकते। हमें आई विल नॉट रिकमेंड यू टू लीव इट। हाँ, फर्स्ट पेज को स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो एडिटोरियल पे, बिल्कुल पहुंच सकते हो, लेकिन स्कैन करना हमें आना चाहिए, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे एंड इट मेक्स सेंस टू यू। नाउ, कोहली इन्वेस्टेड इन गेमिंग प्लेटफॉर्म फर्म विच इज टीम इंडियाज किट स्पॉन्सर। सी, कमिंग बैक टू दिस, अब जैसे ये न्यूज देखा, कोहली इन्वेस्टेड इन गेमिंग, इट वाज लाइट, रियली सॉरी, गेमिंग प्लेटफॉर्म फर्म which is Team India's kit sponsor. See, अब यहां पे अगर तुम थोड़ा बहुत familiar हो तो पता होगा कि कोहली ने एक फर्म में इन्वेस्ट किया है, और उस फर्म ने, वो फर्म जो है वो टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर है। तो यहां पे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? दैट कोहली इज लीडिंग द टीम इंडिया, राइट? एंड
एट द सेम टाइम दैट फर्म वेयर ही मेड द इन्वेस्टमेंट, वो फर्म क्या कर रही है, टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर है, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? Here he's a decision maker in the team India, and at the same time the firm who's actually sponsoring, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी है उस ऐसे व्यक्ति का जो कि डिसीजन मेकर है। तो हमको को पता है इस तरह की बातें कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। बहुत सारे प्रॉफिट वाले पोस्ट के बारे में भी हमने, ये सब न्यूज़ हमारे पास आती रहती है और हमारे काम की हमें पता होना चाहिए। सो इफ यू वांट यू कैन रीड इट, राइट, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। बट अगेन इट मेक्स सेंस, जैसे ये पढ़ा हमें समझ में आया, 2 लाइन पढ़ोगे दिख जाएगा। इन व्हाट रेजेस questions, see थोड़ा सा बड़ा questions of the potential conflict of interest Indian cricket team captain विराट कोहली। so, पहली बात कर दी potential conflict of interest। potential मतलब अभी देखा जाना है कि conflict of interest है या नहीं, अभी proper clear नहीं है, but there is something, right, like that। तो conflict of interest एक ऐसी बात है जिससे कि हर एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा फेमिलियर होना चाहिए। तो you can obviously read it, right, what is that conflict of interest। conflict of interest बहुत सारी जगहों पे न्यूज़ आती रहती है, right? So anyway, coming back to next, और खासकर if you are a decision maker, if you are a political figure, if you are an executive, if you are a government employee, if you are a public servant, you are working in public domain, then you should not fall into some kind of conflict of interest situation, क्योंकि ये anyway it's impartiality के खिलाफ है, right? तो anyway, now coming back to next, outgoing US ambassador less trade Russia आत्मनिर्भर as friction points India must choose। देखो पूरी न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं हो रही, मैं बात समझ में आ रही है। outgoing US ambassador, so US ambassador who's leaving now, the another ambassador will come, what he lists उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, उन्होंने पूरा नोटिफाई करा है किन किन चीजों को, ट्रेड को, रशिया को और आत्मनिर्भर। किन किन बातों को? ट्रेड, यूएस और इंडिया के बीच में जो व्यापार है वो, रशिया एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, हमें पता है, हमने S-400 बाय करा है जिसपे कि अमेरिका को ऑब्जेक्शन है, ये बात पता है, यू नो दैट। और आत्मनिर्भर, और हमारा जो आत्मनिर्भर प्लान है, आत्मनिर्भर भारत, राइट, सेल्फ रिलायंट इंडिया, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स को उन्होंने लिस्ट करा है, रेखांकित किया 3 बातों को एज फ्रिक्शन, जहां पे कि कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स हैं, फ्रिक्शन है, पॉइंट्स। इंडिया मस्ट चूज, इंडिया को डिसाइड करना है कि किधर he wants to, India wants to go ahead with, right? So India must choose। ऐसी बातें obviously ये जाते समय they make these points, these observations, right? इन तीनों ही पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स पे हम सब जानते हैं, ट्रेड और रशिया वाले पॉइंट पे इंडिया और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आत्मनिर्भर पे भी कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में भी हम बहुत सारी चीजों में इंडिया को आत्मनिर्भर रिलायंट, सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश में है, और पीएम का काफी उस पर जोर भी है, जैसा कि यू नो दैट। तो ये तीनों ही जो है कॉन्फ्लिक्ट के, फ्रिक्शन के पॉइंट्स होंगे, इंडिया को चूज करना चाहिए। बाकी अगर तुम चाहते हो तो आगे अंदर पढ़ सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ बाकी इन द फर्स्ट मेंशन डिफेंस रिव्यू सेज unorthodox weapons used in Galwan में unorthodox weapons were used, and then Neerav sisters and her husband opt for pardon to testify against him, right? तो इस सब में बहुत ज्यादा हमारे काम की न्यूज नहीं है। Pranav's eye view, Arunachal crisis to PM note ban appeal, our former president has written a book, उस बुक के बारे में है, हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। Then coming back to next, right? पहला पेज हो गया स्कैन। हमने देखा कि पहले पेज पे हमारे काम की बस कुछ ही न्यूज थी, सारी न्यूज हमारे काम की नहीं थी। दिस सेंट्रल विस्टा 1 जो कि हमें समझ में आ गया बस केवल हेडलाइन पढ़ के, रेडी फॉर वैक्सीनेशन केवल हेडलाइन पढ़ से हमारे काम की याद दिख गई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोहली वाले केस में, वो भी हमें समझ में आता है। एंड देन बैटलिंग वायरस सर्ज, यूके पीएम कॉल्स ऑफ आवर डे विजिट एंड नो कॉल ऑन न्यू गेस्ट येट। नाउ सो गेस्ट ऑफ ऑनर, ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द 26th January रिपब्लिक डे, right, Mr. Boris Johnson, but Boris Johnson ने अभी just because he's too much occupied with the pandemic taking new shape in UK, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। क्या? आर डे की जो इनकी यहाँ की विजिट थी उसको कॉल ऑफ कर दिया, मतलब ही इज नॉट कमिंग। और बाकी गेस्ट पे कौन गेस्ट होगा, नया गेस्ट, उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। तो ये भी यही तो हमें ये सब चीजें केवल हेडलाइन देख के समझ में आ रही है न्यूज। आगे बढ़ते हैं, काम की न्यूज हमें फर्स्ट पेज पर देख गई क्या क्या थी। अब बाकी इस पे तो सब कुछ पहले पेज का ही रिमेनिंग पार्ट होता है, जैसा कि हम कल वाले पे देख चुके थे। मैंने सिर्फ क्या बोला है, स्कैनिंग करना है न्यूज़पेपर, बस काम वाली चीजें। हमें सिटी वगैरह में कुछ खास पढ़ना नहीं होता, राइट, हमारे काम का कुछ खास होता नहीं है जब तक कि कोई एनवायरमेंटल इशूज या कुछ ऐसे कुछ ना दिख जाए। यू कैन स्टॉप देयर, अदरवाइज कीप गोइंग। कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर बुक्ड अंडर NSA, हमें पता है
few people died, there was an incident. So आगे चलते जाओ इस तरह से, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती. Farm talks stuck our day. Tractor rehearsals January 7 again, ये सब सिटी की न्यूज़ है. आगे बढ़ते जाओ, ये सब पॉलिटिकल. एंड देन एक्सप्रेस नेटवर्क, ये भी हमारे काम की बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है. यू कैन रश टू आवर एडिटोरियल पेज, राइट? द editorial page. We reached here. Now, see. So what we see, the very first one, letter and spirit. The editorial, letter and spirit. This is again on the same Central Vista judgment, Central Vista verdict, which we were reading at the very first page. On that, ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का अपना एडिटोरियल है. फिर दूसरा, मिस्टर दीपक पेंटल, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, इन फार्म डिबेट मिसिंग R&D. मतलब जितने भी एग्रीकल्चर डिबेट अभी चल रही है, फार्म लॉज के बारे में डिबेट चल रही है, कृषि के जो कानून बने हैं उन पे जो डिबेट चल रही है, उसमें मिसिंग R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें तो बिल्कुल मिसिंग है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही है जो प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है. दैट्स व्हाट मिस्टर पेंटल एक्चुअली पॉइंटिंग आउट इन दिस आर्टिकल, एंड दिस इज again important article. This article and this article both are going to be important, so you should read it, right? अब इसमें क्या करोगे, इसमें तुम्हें समझ में आएगा क्रक्स कि जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है, उसमें कोर्ट ने क्या बोला है, कौन सी ऐसी टेरिटरी है जिसमें कि पिटिशनर चाहता था कि आप इंटरफेयर करो, कोर्ट इंटरफेयर करे, लेकिन कोर्ट ने वहां पे इंटरफेयर करना जरूरी नहीं समझा, और क्या मोटा मोटा क्या वर्डिक्ट है, ये बात समझ में आएगी. और इसमें हमें बात समझ में आएगी किस चीज की बात कर रहे हैं मिस्टर पेंटल. मिस्टर पेंटल वाज द वाइस चांसलर ऑफ सी. अगर मान लो ये चीजें पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है. किसने लिखा है? द राइटर इज अ फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, पुराने पहले थे एक्स वाइस चांसलर, राइट? सो मिस्टर दीपक पेंटल, एंड ही हैज रिटन दिस दैट इन फार्म डिबेट मिसिंग R&D. कम से कम इतनी बड़ी डिबेट हो रही है नेशनल लेवल पे, मीट्स हो रही हैं इतनी, फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं इतने दौर की. तो उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक्चुअली इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इन सारे प्रॉब्लम्स के सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, जिसमें सच में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है सॉल्व करने की, उस पर तो बात जरूर होनी चाहिए. एंड दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हम कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसी पे बात नहीं हो रही है. तो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज पॉइंट आउट किया है मिस्टर पेंटल ने, तो इसको हम पढ़ सकते हैं. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? आगे बढ़ते हैं. द सिस्टम वर्क्स. So episode of Trump's latest impropriety anyway underlines a message: institutional checks and balances in US are alive and kicking. तो anyway US के प्रेसिडेंट के बारे में भी कुछ थोड़ा सा चीजें वीडियोस वगैरह आउट थी about the anyway all the election process. That's again prolonged one, as you know. US का election process तो prolong ही होता जा रहा है. But again you know उसके बारे में ये आर्टिकल है. And then that January 28 years have passed since that date, but I cannot forget. So दिस इज अबाउट द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद. तो उसके बारे में लिखा गया है. तो कुल मिला के हमने क्या देखा, हम इस एडिटोरियल पेज पे वी हैव टू आर्टिकल्स विच वी कैन रीड. वन इज लेटर एंड स्पिरिट, दैट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन सेंट्रल विस्टा प्लान, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्लान, एंड द अदर वन इज अबाउट द फार्म लॉज, राइट? उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होगी और रिसर्च डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और उस पर बात क्यों नहीं हो रही है, और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्यों उस पर बात होना जरूरी है, क्यों वही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारे सॉल्यूशंस के लिए पोटेंशियल है, सॉल्यूशंस या इश्यूज को सॉल्व करने का पोटेंशियल है, राइट? ये दोनों आर्टिकल हमारे काम के हैं. आगे बढ़ते हैं हम. ये गूगल के एम्प्लॉइज के बारे में है, राइट? सो दिस आर्टिकल, सो द फर्स्ट वर्कर्स यूनियन इन सिलिकॉन वैली frames a moment of skepticism about the big tech utopia, right? So Google के बारे में तुम जानते हो, again बहुत सारी बातें होती हैं, the happy workplace and all. Google के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, but Google में भी employees ने एक ग्रुप बनाया है, अपना एक यूनियन बनाया है, around 400 engineers and all. They have made a group, and there are some disparity there, you know, in work condition based on gender, based on race, racial discrimination है, gender based discrimination है, कई सारी बातें हैं. उन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए they have made a union, right? So उसके बारे में है ये Googlers Unite. So if you want, you can talk about this and you can read it anyway in one go if you have time. But otherwise those two articles are important on the editorial page. बाकी पढ़ने की इतनी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा you cannot spend more than 1 hour on newspaper reading, right?
कुल मिला के बिगिनिंग में थोड़ा बहुत टाइम भले लगे, लेकिन बिगिनिंग में कम कर लो आर्टिकल्स, but you cannot spend more and more and more time on that. 1 hour is enough if you're preparing for any competitive exam, right? अब आ जाओ, हम आगे आते हैं the ideas page. अब ideas page पे the very first one is the child in India. This is important, see, because here you're going to talk about the next big welfare initiative of the government should focus on the well-being of the child and the mother from the womb to the first 5 years. हमें पता है कि मोर्टालिटी रेट और इन सब चीज़ों के बारे में, चाइल्ड बर्थ, मेल न्यूट्रिशन, ऐसी बहुत सारी बातें, वी नो दैट, राइट? सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, यू कैन रीड दिस, राइट? कमिंग बैक टू दिस वन, द यूनिवर्सिटी बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट. अगेन दिस इज अबाउट some universities, JNU and other universities. This is not important, so this article is of your use. You can read this. This is important, right? अब हम आइडिया पेज पे हमने देखा एक आर्टिकल हमारे काम का है. नेक्स्ट वन, not by digital alone, not by digital alone. How over reliance on the tech worsens financial exclusion in rural India. हमने देखा काफ़ी कुछ बेनिफिट्स भी हैं रूरल इंडिया में, जैसे अकाउंट्स के, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है, और बहुत सारी चीज़ें, जिससे काफ़ी चीज़ें तो हमने देखा भी है, उनके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है कि किस तरह से ये दिस इज़ बेनिफिटिंग द पुअर, द फार्मर्स एंड अदर्स इन द रूरल इंडिया. लेकिन इसके अपने लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में आर्टिकल है, नॉट बाय डिजिटल अलोन, राइट? सो ऑन दैट एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो हैज़ टू बी इंश्योर्ड कि जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ बेनिफिट ट्रांसफर, is he able to access that account or not, and who's accessing and all that. So this is on that basis. So this is also if you have time. See, I keep underlining if you have time. You cannot just keep reading newspaper for 4 hours if you're preparing for any competitive exams. If you have a lot of time, you're not planning for any exam as of now, then you give time. 1 hour, even 2 hours is fine. But एक चीज़ और है, if you're efficient, तो इसको पढ़ने में कम टाइम लगता है. अगर प्रॉपर एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो इन आर्टिकल्स को पढ़ने में टाइम कम लगता है. एंड इफ यू आर अ बिगिनर, सो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो इसलिए बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही सोच समझ के हमें डिसाइड करना है कि कौन सा आर्टिकल 1 या 2 पिक करना है और उतना ही पढ़ना है, राइट? सो कमिंग बैक टू दिस आर्टिकल, मैं उतना ही बता रहा हूँ कौन कौन से आर्टिकल बेटर है. इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड, राइट? ना आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस नेटवर्क हमारे किसी काम का नहीं है, सब पेज की न्यूज़ भी. आगे बढ़ते जाओ, बस दैट्स ऑल, राइट? सो हमने क्या डिसाइड किया, 1, 2 अराउंड 5-6 आर्टिकल्स, राइट? 5 आर्टिकल्स आई थिंक. अब उस 5 में से 1 या 2 सेलेक्ट करना है बिगिनर्स को, नॉट मोर देन दैट, अदरवाइज यूल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. सो बाकी बहुत सारी और भी न्यूज़ है इस तरह से. दिस इज एक्सप्लेन्ड, जैसा कि मैंने बताया था, एक्सप्लेन्ड पेज एक आता है इंडियन एक्सप्रेस में, एंड दैट इज यूजफुल फॉर द पीपल, फॉर द स्टूडेंट्स who are targeting any written exam kind of thing like UPSC, state PSCs, ऐसे एग्जाम जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल्स जरूरी होते हैं एक्सप्लेन्ड वाले, बिकॉज यू गेट सम द language, you get the words, you get the terminologies, you get the sentence formation, you get how to express your views and so many things. You learn a lot many things. So अगर किसी रिटन एग्जाम वगैरह में एग्जाम देना है इस तरह से, और खासकर जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि हमारे यूपीएससी में पूछा जाता है, then obviously you have to read this. You can read this. This will really be beneficial. So reading सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट, जैसा कि देखो सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट के बारे में है. अब दिस विल बी द complete explanation, and this will really be useful, right? So all those things, whatever has been said by the court, चाहे वो एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात हुई हो, चाहे वो डोमेन के बारे में बात हुई हो कि जुडिशियल डोमेन कहाँ तक है, एग्जीक्यूटिव की डोमेन कहाँ पे होती है, लेजिस्लेचर की क्या क्या डोमेन है, और वेयर दी जुडिशियल डोमेन एंड्स, कितनी बातें जुडिशियल डोमेन में हो सकती हैं और क्या इसके बियॉन्ड है, कितनी बातें पार्लियामेंट में होनी चाहिए, इस तरह के रिमार्क्स हैं उस डिसीजन में, उस वर्डिक्ट में, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. तो ऑब्वियसली दिस विल बी यूजफुल, राइट, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. इफ यू हैव टाइम, मैं वनडे एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा इसको पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ, इफ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू दिस. हाँ, यूपीएससी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे हैव टू रीड दिस. दिस विल बी रियली बेनिफिशियल. नेक्स्ट वन, एंटीबॉडीज टारगेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोरोना वायरस इन माइल्ड और सीवियर केसेस स्टडी. ये अगेन साइंस एंड टेक के बारे में बात है. आगे आते हैं. On Nile, a grand dam divides the African nations. CSIR labs. Okay, so अब बाकी न्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं. वर्ल्ड में Britain's ordered to stay at home. We know that. We have been listening to the news, right? In Gulf. Anyway, Britain tells Saudi Arabia open summit with call to counter Iran threat.
आगे भी देख लो तुम। तो कुल मिला के हमारे किसी काम की बहुत ज़्यादा न्यूज़ इधर कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। Recovery to bank on economic activity increase. See, if you're planning for bank exams, banking and finance related जो आर्टिकल्स होते हैं उन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, पढ़ने बस उतने ही है जितने काम के हो। अगर कुछ बढ़िया आर्टिकल एक्सप्लेन करता हुआ दिखे देन यू रीड इट, अदरवाइज यू जस्ट थोड़ा सा स्कैनिंग, जैसे फर्स्ट पेज की स्कैनिंग करी थी। रिकवरी टू बैंक ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंक्रीज्ड मोबिलिटी, राइट। थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे है। डबल ऑफ दी कहाँ था, this much $1 billion in 2020 to internet shutdowns over double of the 20 others. आगे भी देख लो तो you can check कोई आर्टिकल है हमारे काम का कि नहीं, not of use। आगे बढ़ते हैं। right, so this was the scanning of the paper। if you do obviously ये सब सॉल्व करने की लिए रुक जाया करो। स्पोर्ट्स में भी if something is useful you can read, you can stay and scan it, otherwise go ahead। that's all। So this was the scanning of the complete newspaper, the complete Indian Express newspaper। This is how you have to do the scanning। हमने देखा हमारे काम के कहाँ मिला, फर्स्ट पेज पे मिला आर्टिकल, एडिटोरियल पे मिला, उसके बाद वाला आइडिया पेज पे मिला और एक्सप्लेन्ड पे मिला। कुछ कभी कभी हो सकता है स्पोर्ट्स और इकोनॉमी पे भी मिल सकता है कभी कभी। That's all, right? So this is how you scan, this is how you do the scanning, that's all। Now coming back to this, and after that you come to conclusion that around 4-5 articles were useful, which you can read, 5-6 articles, right? But depends किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। इफ यू हैव अ प्रॉपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में, then you read it। if you're preparing for bank and all, you take some time and look for some article in the economy page and banking finance page। if you preparing for UPSC, you go to this explained page, वहाँ पे देखो अगर काम का आर्टिकल है तो read it। इस तरह से किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ये भी ध्यान में रखना होता है। बट ये जो सेशन है दिस इज फॉर बिगिनर्स, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ स्कैनिंग और कुछ ऐसे आर्टिकल्स तक ही बात करेंगे, 1 या 2 आर्टिकल, जितना कि पढ़ना वायबल भी है, जितना पढ़ना ज़रूरी भी है और जो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करे। दैट्स ऑल। आ जाओ हम बात करते हैं अब। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि हर दिन हम एक आर्टिकल पे बात भी कर रहे होंगे, राइट। सो the one article we have picked from the newspaper, Letter and Spirit, right? So you have seen this was on the editorial page, Letter and Spirit, this article was there, and in this article they talked about and they discussed about the verdict, Supreme Court's verdict on Central Vista Development Plan। उसके बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में। मैंने बोला था कोई आर्टिकल यू कैन रीड, तो हमने इसको पिक कर लिया है। आज वाले आर्टिकल में हम जो काम के वर्ड्स हैं उनको वोकैब के तरह हम उसको अलग नहीं कर पाए हैं, पीपीटी बहुत जल्दी जल्दी में बनी है, बट हम धीरे धीरे अपने इस सेशन को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करते जाएंगे, जिसमें कि जितने भी इस तरह से वोकैब वाली बातें होंगी दैट विल कीप पुटिंग सेपरेट, और जो ग्रामेटिकल यूसेस की भी काम की बातें होंगी उन पे भी हम बात करता हुआ एक एक पेज अलग करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली इट विल बी स्ट्रीमलाइंड। कमिंग बैक टू दिस, लेट्स रीड। ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, SC is mindful of, you are mindful of something, right? That's again, you know that I'm mindful of this, मतलब मैं इसको लेके चैतन्य हूं, मैं इसको लेके अटेंटिव हूं। So SC is mindful of its role and limits। पहले ही बात किया, एक्सप्लेन्ड में यही बात हुई है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी का कहां तक लिमिटेशन है, कहां तक टेरिटरी है, कितना इंटरफेरेंस जुडिशरी कर सकती है, राइट? इसी वजह से जस्टिसेस ने ये बात बोली भी है क्या कि पिटिशनर वांटेड अस टू इंटरफेयर इन सम टेरिटरी which is not in our domain, right? Anyway, so on the Central Vista project, SC is mindful of its role and limits। So Central Vista project पर क्या है, SC जो है बहुत ही सावधान है, बहुत केयरफुल है, किस बात को लेके, अपने रोल को एंड अपने लिमिट्स को, लिमिटेशंस जो है उन चार चीजों को लेके। गवर्नमेंट मस्ट हीड इट्स मैसेज ऑन ट्रांसपेरेंसी। सो गवर्नमेंट को भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि लेकिन उसमें भी अंडरलाइन मैसेज कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है जस्टिसेस ने अपने वर्डिक्ट में, किस बात से लेके, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। क्यों ऐसा बोला गया है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रॉपर इंटेलिजिबल इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक डोमेन में जरूर रखी जानी चाहिए, ऐसी बात बोला है वहां पे। डिसेंटिंग जजमेंट में भी बात बोली गई है, तो उसी के बारे में इसमें देखो। अब ये चूंकि क्या है, एक्सप्रेस का अपना एडिटोरियल है, तो इसमें कई बार कुछ एडवाइस भी देता हुआ दिखेगा, तो इसीलिए देखो लिखा हुआ ना, गवर्नमेंट मस्ट हीड, पे हीड जरूर ध्यान देना चाहिए किस बात पे, इट्स मैसेज, किसका मैसेज, सुप्रीम कोर्ट्स मैसेज नाउ ऑन ट्रांसपेरेंसी, राइट? ऐसी बात की यहां पे। सो द सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट्स अप्रूवल, अल अप्रूवल वाले जितने भी वर्ड्स अल वाले होते हैं, एडजेक्टिव एंड नाउन, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट्स अप्रूवल, अप्रूवल, डिनायल, रिफ्यूजल, सारे वर्ड्स, वी अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो अप्रूवल मतलब उसकी सहमति, अप्रूव कर दिया, अप्रूवल ऑन टुडे हैज क्लियर्ड द डेक्स, क्लियर द डेक्स, सारे हिंड्रेंसेस दूर कर दिए, सारी रुकावटें दूर कर दी। क्लियर द डेक का मतलब पता है हमें, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेज। सो क्लियर द डेक्स for the union government's ambitious Central Vista project. Central government's ambitious Central Vista project. The Supreme Court ने approval के बाद आज Tuesday को has cleared. Anyway, it's kind of a perfect. We all know that has have had the third form. The decks, clear the decks. It's kind of a phrase which means removing all the hindrances, removing all the obstacles. So सारी रुकावटें दूर कर दी. For what? For the union government's ambitious Central Vista project. The court has been sober. The court has been sober and circumspect in limiting itself. You have been circumspect. You have been sober in what? In doing what? In limiting itself. See, देखो ये भी हमारा एक structure है जब हम पढ़ रहे होते हैं grammar वगैरह. So we talk about that, right? Anyway, so the court has been sober, has been very quiet, very sober, very serene, बहुत शांत, right? सोबर का मतलब समझ में आ रहा है हमें, शांत, राइट? एंड सर्कमस्पेक्ट, वेरी केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट इन लिमिटिंग इटसेल्फ टू द लीगलिटी ऑफ द केस. केवल केस की लीगलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, बाकी उसके बियॉन्ड जाके लेजिस्लेचर की टेरिटरी में या फिर एग्जीक्यूटिव के टेरिटरी में इंटरफेरेंस नहीं किया है. It has been mindful of this. Circumspect in limiting itself to the, so you circumspect, you careful in doing something. You, आगे भी बात हुई थी हमारी, right? Now, in limiting itself to the legality of the case, political issues including regarding development of policies of the government of the day must be debated in the parliament. This has been said by the Supreme Court. Supreme Court ने ये बात बोली है क्या कि भाई political issues जो है including regarding the development policies के regarding भी से के संबंधित जितनी भी चीजें हैं that must be discussed in the parliament. क्या? To which it is accountable. The parliament is accountable to all these development and other works. So it has to be discussed by the legislature in the parliament. So it's not Supreme Court's domain to talk about the development and stuff. That has to be discussed in parliament. The rule. So इसमें हमें पूरा ये देख के समझ में आया सेंटेंस किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं. See, ये तो हमारा लेटर एंड स्पिरिट, ये तो बस केवल हेडलाइन है हमारी. Letter and spirit, which has been set in letter and spirit, that is being explained by the Supreme Court. अब क्या मैसेजिंग है, क्या डिसीजन है, कितना अप्रूवल है, हिडन मैसेज क्या दिया गया है गवर्नमेंट को, ये सारी बात इसमें बात हुई, इसीलिए लेटर एंड स्पिरिट लिखा. सो ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्टा प्रोजेक्ट, ये भी हमें समझ में आ रहा है किस तरह से एससी इज माइंडफुल ऑफ इट्स लिमिट्स, इज माइंडफुल. सो यू माइंडफुल, आई एम माइंडफुल, ही इज माइंडफुल, शी इज माइंडफुल ऑफ समथिंग, राइट? मतलब केयरफुल, यू केयरफुल अबाउट समथिंग, राइट? सो माइंडफुल ऑफ, इस तरह से हम यूज करते हैं. हम इस तरह से कई बार जो इस फिक्स प्रीपोजिशन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी भी बात करते हैं और उनका किस तरह से कंटेक्चुअल सेंस क्या निकलता है, दैट आल्सो यू अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल रीडिंग. ऑल द बिगिनर्स, सारे बिगिनर्स के लिए बात कही जा रही है कि जब एक आर्टिकल पढ़ो यू बी ले नो माइंडफुल ऑफ दिस, राइट? व्हाइल रीडिंग. माइंडफुल ऑफ व्हाट? माइंडफुल ऑफ correct uses, mindful of sentence structure, mindful of sentence formation, how that is being formed, mindful of the meaning which is being derived, which is being conveyed. ऐसी चीजों को लेकर हमें माइंडफुल रहना है. नाउ आगे भी हमने देखा अप्रूवल ऑन ट्यूसडे हैज क्लियर्ड द डेक्स, इस तरह से कॉमा से जो चीजें अलग करके इस तरह से लिखते हैं हमें पता है. हैज क्लियर्ड द डेक्स, क्लियर द डेक्स इज अगेन अ phrase. What is the meaning? You know that for the union government's ambitious Central Vista project, and the court has been sober and circumspect in limiting itself. So you careful in doing something, right? So you circumspect in doing something, in limiting itself to the legality of the case, and political issues including regarding the development program. So सारे political issues including anything, including development, including regarding the development issues must be discussed in parliament. That's what the saying of the government of the day must be debated in the parliament, and to which it is accountable. ऐसा Supreme Court के remarks हैं, right? That's the reason they did not go and venture in the territory of legislature. वो legislature की territory में they did not venture into. उन्होंने उसमें interfere नहीं किया. Now the role of the court is, आगे क्या कह रहा है? The role of the court is limited to, so role of anybody is limited to something. Limited सीमित है
this is how this structure, how this sentence is being formed, is limited to examining, limited to doing this, limited to going there, limited to whatever, so limited to examining their constitutionality. So कोर्ट का बस इतना ही रोल है, constitutionality बस केवल संवैधानिकता को एग्जामिन करना, उसको चेक करना, that's all. At the same time the judgment delivers important messages. तो जजमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट मैसेज भी डिलीवर किया है. At the same time the judgment delivers, you know that again in the simple present, we know that delivers important messages, बहुत सारे important messages deliver करता है. Now a 2-1 split verdict, 2-1 again majority judgment by the justices, a 2-1 verdict, जैसा कि you know I tell you one thing, see verdict, the moment you see this word verdict, dict कई बार देखते हो, it's kind of a root word, right? Diction, dictionary, right? Dict, to speak, ver, and then ver, this word is also a root word. इसका मतलब होता है, ver का मतलब होता है truth, right? So such, so verdict, such कहना, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, verdict, decision, निर्णय, right? That's how it is, right? So you be mindful of this words. जैसे मैंने बोला, यही चीजें हम अगली बार से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, this will be accumulated, kept at one place. जिससे क्या होगा, this will make you more, you know, careful with the words being used, vocab. अब verdict से related सारे words एक जगह रख दो, जो मैं theme linking की बात करता हूँ, चाहे verdicts हो, decision हो, सब करते जाओ, जजमेंट हो, उन सब में क्या डिफरेंसेस है, कंटेक्चुअली क्या मतलब है, उनकी मीनिंग किस तरह से सिमिलर है, कहाँ तक सिमिलर है, ये सारी चीजें हम एक जगह करके हम बात कर सकते हैं. सो वर्डिक्ट, अब वर्ड से कई सारे वर्ड्स बनते हैं, वेरोसिटी, वेरिली, राइट, वेरोशियस, दैट्स हाउ इट इज, राइट. सो वेरोसिटी का मतलब ये होता है सत्यता, वेरोसिटी जांचते हैं, राइट, इस तरह चेक करते हैं. वेरोसिटी अगेन वर्ड VER से ही बना है, वेरिली, राइट, वेरोशियस, कीप सेइंग दैट, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं VER से जो सच या ट्रूथ के आसपास होते हैं. ऐसे डिक्ट से भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, डिक्शन एंड ऑल दैट. सो नाउ आगे, इट मस्ट बी रेड इन इट्स इंटायरिटी. सो अ 2-1 स्प्लिट वर्डिक्ट, जो 2-1 का जो स्प्लिट, जो विभाजित डिसीजन है, निर्णय है, सहमति से नहीं है, सर्वसहमति से नहीं है, राइट, क्योंकि 2-1 से डिवाइडेड है. तो इट मस्ट बी रेड इन इट्स इंटायरिटी, पूरा संपूर्ण उसमें पढ़ना, एक बार में पढ़ा जाना चाहिए. फॉर द मेन वर्डिक्ट by Justices A.M. Khanwilkar and Dinesh Maheshwari, as well as the dissenting विसम्मति, जो असहमति वाला वर्डिक्ट है, जो dissenting note by Justice Sanjeev Khanna direct the project proponents, जो प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स हैं, सपोर्टर्स हैं, प्रोपोनेंट्स, opponents and proponents. So now pro means for, right? So proponents जो पक्ष में हैं, project proponents, see, right? 2 important imperatives. Imperatives means something which must be done. Imperatives पता है ना, imperatives, right? Which must be done. तो दो कुछ imperatives की तरफ ध्यान दिलाया है, direct. इस जजमेंट ने डायरेक्ट किया है किनको, प्रोपोनेंट्स को, द सपोर्टर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट, व्हिच ब्रॉट दिस प्रोजेक्ट, उनको क्या किया है, डायरेक्ट किया है किस तरफ, 2 इंपॉर्टेंट इंपेरेटिव्स की तरफ. इंपेरेटिव्स मतलब जो जरूर किया जाना चाहिए, इंपेरेटिव्स बहुत ही महत्वपूर्ण, जो किया ही जाना चाहिए, दैट इज व्हिच मस्ट बी डन. ऐसे 2 महत्वपूर्ण चीजों की तरफ ध्यान दिलाया है. रिस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंटल एंड हेरिटेज नॉर्म्स, दोनों क्या चीजें हैं जो inevitable है, which must be followed. The first one is respect for environmental and heritage norms, and the second one is and the salience of consultative process. Salience, right? Salience of उसकी anyway, salience का मतलब the importance, you can say, जो prominence, you can say, salience of consultative process. Consulting all the parties of it, उनके सभी जितने भी भागीदार हैं, उन सबसे कंसल्टेटिव प्रोसेस का जो महत्व है उसको भी ध्यान दिलाया था. 2 चीजें, पहला तो एनवायरमेंटल एंड हेरिटेज इश्यूज के बारे में, और दूसरा द सेलियंस ऑफ कंसल्टेटिव प्रोसेस. सो बोथ मस्ट बी देयर. पहली चीज तो एनवायरमेंटल इश्यूज को मस्ट बी टेकन केयर, एंड हेरिटेज नॉर्म्स को भी. और दूसरी बात, अब जो कंसल्टेटिव प्रोसेस में तो यही तो बोला है, जितने भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक जो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है,
intelligible information है, that must be made public so that everybody knows about it. That's what has been said in the judgment. Now, indeed, as Justice Khanwilkar, writing for himself, he was writing his own judgment, and Justice Maheshwari points out, they actually pointed out, they brought out, they said what? The challenge to the project was premised, that was based, passive voice, right? Was premised, third form. So the challenge was based on what? The challenge was premised on what? On high principles of democracy and, see, so this is how we make the sentence. Something was done, something was premised, something was based. So passive voice, based on high principles of democracy and not limited to mere infringement of statutory provisions. That is not limited and not limited to. This is not limited to this is not limited to that. That's how you make the sentence. Something is not limited to, was not limited to. अब यहाँ पे फिर से was नहीं बोला क्योंकि was already used here, the helping verb. अब this helping verb is making passive with this verb also and is making passive with this verb also. Parallelism, right? You can use both ways. दोनों जगहों पे पढ़ते हैं हमें हमेशा बार बार. Was not limited to mere infringement of statutory provisions. Statutory, संवैधानिक, statute, act, law, इसकी बात होती है statutory provisions. केवल statutory provisions तक ही limited नहीं है, उसके infringement तक ही limited नहीं है. This goes beyond that, right? As government agencies, planners, and architects give shape to a new central vista, Tuesday's verdict underlines, जैसे कि इन सब चीजों को नया शेप दिया जा रहा है by the planners and architects and agencies, जो ट्यूसडे का verdict है, जो जजमेंट है, जो डिसीजन है, underlines, this points out, रेखांकित करता है किस बात को? The sanctity of the participative processes. अब देखो यहां पे go ahead तो दे दिया, all clear तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बट जो मैसेजिंग है, अंडरलाइंड मैसेजिंग, द हिडन मैसेजिंग, उसको पॉइंट आउट करता हुआ ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है बाय द एक्सप्रेस टीम, राइट? तो वही कह रहे हैं, ट्यूसडेज वर्डिक्ट अंडरलाइंस द सैंक्टिटी, द प्योरिटी, राइट? सैंक्टिटी, प्योरिटी, शुद्धता, प्योरिटी, राइट, ऑफ पार्टिसिपेटिव प्रोसेस. सो पार्टिसिपेटिव प्रोसेस कितना सैंक्टिटी वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है, इस बात को अंडरलाइन कर रहा है. एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. दो बातें, एक तो पार्टिसिपेटिव प्रोसेसेस means all the जितने भी participants हैं, they must be consulted, and transparency in the public institutions. This must be transparent. The information, the important information जरूर transparent तरीके से public की जानी चाहिए, जिससे proper transparency दिखे भी, right? And everybody is aware what is happening. Next, the court talks about the government's need. The court ने ये बात भी बोली है, also talks about the government's need for revamped. यहां पे थोड़ा गड़बड़ है ये चीज. Let me give you, यहां पे अ के बाद revamped होना चाहिए, साथ में आ गया revamped, renovated, जो भी है. गवर्नमेंट्स नीड, जो कोर्ट ने ये भी बात बोली कि जो गवर्नमेंट की जरूरत है फॉर अ revamped enclave, एक रेनोवेटेड एनक्लेव बनाए जाने की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, to house the country's highest legislative body, जो कंट्री की highest legislative body है, legislature body है, सांसद है जितने भी, उनसे पूरी बॉडी को, and an integrated administrative block for ministries and departments, इसको बनाए जाने की जो जरूरत है, इससे related information must be made public and must be made transparent. ऐसी बात कर रहे हैं. So revamped, it's again a word, revamped, renovated, that's what is being done under this development plan. Another building, another complete vista plan is being developed, right? Now, so what is the need for that? What is the urgency for that? That also must be made public and in the transparent manner. ये बात कर रहे हैं यहाँ पे. Now, coming back to this, but it is also again, but you know that contrast. ये बात कह दी भाई, ये तो ठीक है, जो जरूरत है उसकी आवश्यकता. Then, but it is also alive to the challenges. Who's alive? The court is alive to these challenges. Court इस बात को लेके भी जीवंत है. किस बात को लेके? The challenges such development poses. जो कि ऐसे developments क्या करते हैं?
ऐसे डेवलपमेंट जिन चैलेंजेस को पोज करते हैं, पोज मतलब खड़ा करते हैं, ब्रॉट दे एक्चुअली ब्रिंग स्टैंड दो चैलेंजेस, पोज करना, पोज अ चैलेंज, पोज अ दिस, पोज अ थ्रेट, पोज अ चैलेंज, इस तरह से. सो पोज टू द एनवायरमेंट द टू इट नोट्स. सो दो चैलेंजेस जो कि इस डेवलपमेंट प्लान के द्वारा जो कि एनवायरमेंट को दो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं? आर नॉट सॉन एनिमीज. ये बात कर रहे हैं कि भाई जो चैलेंजेस हैं वो सॉन एनिमीज नहीं है. सॉन का मतलब होता है टू टेक कसमें खाने वाले सेंस में, तो कट्टर एनिमीज नहीं है, मतलब इनके बीच में प्रॉपर सामंजस्य पॉसिबल है ऑफ ईच अदर. इट आस्क्स फॉर क्रिएशन ऑफ स्मॉग टाउन्स. अब ये देखो, कोर्ट हैज सजेस्टेड नाउ अगेन वन थिंग, व्हाट, दैट वी कैन मैरी दीज टू कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेसेस. एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज को और दूसरा डेवलपमेंट की जरूरत को, दोनों में सामंजस्य बिठाया जा सकता है. तो क्या करना चाहिए? स्मॉग टाउन्स बनाए जाने चाहिए एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉग गन्स for pollution and all, that also must be deployed to mitigate, to reduce, कम करने के लिए क्या? the pollution from the construction material, sand materials, and s इधर है and उधर है, यहां पे भी this is the typing mistake. कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है, यू नो दैट राइट. तो उसके लिए कोर्ट ने ये बात बोली है कि मिटिगेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? स्मॉग गन्स एंड स्मॉग टाउन्स मस्ट बी मेड देयर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड डायरेक्ट्स दैट, और ये भी इस बात की भी डायरेक्शन देता है दैट वेस्ट मैनेजमेंट एट द साइट बी सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट मॉनिटरिंग. और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी प्रॉपर कांस्टेंट मॉनिटरिंग, लगातार प्रॉपर निगरानी की जाए उसकी, जिससे कि वो कम से कम पोल्यूशन लेवल में कंट्रीब्यूट ना करे. ऐसी बातें बोली है. तो ये क्या है? सामंजस्य बिठाया जा रहा है दोनों चीजों में, राइट? एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन इश्यूज एंड प्लस डेवलपमेंट नीड्स. नाउ बट बियॉन्ड दीज मेजर्स इट स्पेल्स आउट, इसके अलावा भी, इसके बियॉन्ड भी, इन सारे कदमों के बियॉन्ड भी, इट स्पेल्स आउट, it points out what it said, it talks about, it directs the guiding principle. What are the guiding principles? Development ought to be sustainable. We all talk about world over. हम सब जानते हैं इस बारे में sustainable development पे कितने concerns हैं, right? The whole I'll not say whole world is concerned because it keeps changing with the change in the leadership. Leadership में परिवर्तन के साथ साथ इसमें बदलाव भी आता रहता है कि कितना देश के जो नेता है, अग्रणी नेता है, जो लीडर्स हैं, वो कितने कंसर्न है इन बातों को लेके और कितने कंसर्न नहीं है, राइट? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा था, मिस्टर ट्रंप इवन रिजेक्टेड दैट देयर इज समथिंग लाइक ऑल दीज पोल्यूशन स्टफ, इवन द ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल. तो इस तरह से लीडरशिप पे भी डिपेंड करती है कि लीडरशिप कितनी सेंसिटिव है और कितनी सीरियस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके. बट एनीवे, गवर्नमेंट ने बात, कोर्ट ने बात बोली है कि ये दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए. डेवलपमेंट ऑट टू बी सस्टेनेबल with the idea of preservation of the environment. environment को preserve करने की idea के साथ ये बिल्कुल sustainable होना चाहिए. sustainable का मतलब that you utilize the resources, the natural resources in such a wise manner that you do not create havoc. आने वाली जनरेशन के लिए तुम इतनी बड़ी लेवल पे भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करो that they start anyway cursing you. तो इस तरह से नहीं होना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब है, ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. तो बात ही फ्यूचर जनरेशन की आ जाती है. जैसे तुम सस्टेनेबिलिटी की बात करो वैसे ही बात फ्यूचर जनरेशन की होने लग जाती है, राइट? तो ये बात भी, तो एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन की बात भी कोर्ट ने की है. इसमें ये दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए. इकोलॉजी इज अ रेकरिंग कंसर्न इन जस्टिस खन्ना's डिसेंटिंग नोट. अब जस्टिस खन्ना का जो डिसेंटिंग नोट था, जो असहमति वाला नोट था, जो विसम्मति वाला डिसीजन था जो उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने इस बात को, कंसर्न को लिखा भी है, इकोलॉजी के कंसर्न को रेकरिंग कंसर्न, इट्स कंटिन्यूइंग कंसर्न, कंटिन्यूअस चिंता है जस्टिस खन्ना's डिसेंटिंग नोट एज वेल. दो सी एज वेल का यूज हमें पता है. दो अगेन कॉन्ट्रास्ट, दो ही डिसएग्रीज विद हिज फेलो जजेस, इसी वजह से अलाउ नहीं किया, उनका डिसेंटिंग जजमेंट है, फेलो जजेस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इस पर भी सवाल उठाया, उस पर सहमत नहीं हुए हैं मिस्टर जस्टिस खन्ना. कोटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स 2019 वर्डिक्ट इन हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट को कोट करते हुए जस्टिस खन्ना एक्चुअली डिसएग्रीज with the credibility of environmental
clearance which was given to this project, right? Now Justice Khanna notes public consultation is not a, यहाँ पे भी typing error है, not a mere formality. It's not only a formality, it must be done in practical sense. That's what he's saying. Decisions which affect lives of people, ऐसे decisions, ऐसे निर्णय which दिख ही रहा हमें, what which is doing here, which refers to decisions, right, which affect lives of people. Again हमें दिख रहा है relative pronoun की तरह इसको यूज किया जा रहा है, right? So हमें पता है इसके पहले वाले जिसको यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? So पहले वाली चीजों को, now anyway, so this is being used for decisions affect lives of people must factor in their concerns. So ऐसे decisions जो कि लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, they must factor in their concerns. He returns to the theme while referring to the heritage related concerns. Heritage वाली बात पहले की थी, environment and heritage. Delhi's Heritage Conservation Committee was not consulted. इस बात को भी उन्होंने point out किया. एक तो environmental clearance पे भी he was disagreeing, and the second point even जो heritage committee है उसका भी, उससे भी consult नहीं किया गया while framing the plans for the revamped enclave, redevelopment enclave or innovation of the enclave. He says the primary grievance of the petitioners, जो petitioners के पहला जो grievance है उनका जो पहला सवाल है वो क्या है? The dissenting note points out is the lack of information and details. So there the petitioners, the first demand is this, actually there is no information and there is no details in the public domain. That's the reason they are, they have a lot of questions. That the majority verdict too underlines the significance of transparency. ऐसा कि majority verdicts में भी transparency की significance की बात हुई है. Transparency क्यों जरूरी है? Public domain में information दिया जाना चाहिए unless complete and relevant information is placed in public domain. जब तक कि जो complete information public domain में जानी चाहिए और relevant information public domain में दी जानी चाहिए. That's what the transparency is all about, right? And the public would be ill-equipped. जब तक ऐसा नहीं है, the public would, unless, come here again now, unless, right? Unless का use हम पढ़ते हैं, a negative word, conditional word, unless complete and relevant information is placed in public domain, the public would be ill-equipped to engage with the government in a meaningful manner. So they'll be ill-equipped, पूरी तरह से equipped नहीं होगी, उनके पास पूरा information नहीं होगी, so they'll not be able to engage with the government. They'll have a lot of suspicious notions about it. So to engage with the government in a meaningful manner should be a key takeaway from the government as it embarks on this historic and iconic project. तो ऐसा इस एडिटोरियल में ये बात पॉइंट आउट की गई है कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे होगा. दिस इज द बिग टेक अवे फॉर द गवर्नमेंट एज इट एम्बार्क्स, जैसे कि स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं व्हाट दिस हिस्टोरिक एंड आइकॉनिक प्रोजेक्ट. सो व्हेन यू रीड दिस, सी इसमें हमने ग्रामर के बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि हम अलग अलग पीपीटीज में इसको हम ध्यान रखेंगे. अगली बार से हमारे एक और पीपीटी में वर्ड्स भी, वोकैब भी और ग्रामर के भी पॉइंट्स वी कीप पुटिंग इट, राइट. That's how it is. So आज के लिए इतना ही. इस तरह से हम एक आर्टिकल हर बार डिस्कस कर रहे होंगे. दिस इज रीडर्स प्राइम सीरीज एनीवे, राइट. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर टुडे. दैट्स ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट, नेक्स्ट सीरीज.